ابھی میرے ساتھ یہاں پہ کوہٹا کے اس مقام پر جہاں پہ ہم پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں ایس این قریشی یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. نمل یونیورسٹی کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی جو کوہٹا میں جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے مرکزی آرگنائزر میں سے ہیں. تو ایس این بھائی، ہم اس مقام پر ابھی کھڑے ہیں جہاں پہ 1988 میں حادثہ ہوا تھا جس میں 70 لوگوں کی جانیں گئی تھی جو پونچھ سے بلانگ کرتے تھے. تو اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ شکیب بھائی. سب سے پہلے تو میں SSWS کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ سب نے یہ اسٹیپ لیا اور تمام ان شہداء کو یاد رکھا جو آج سے 27 سال پہلے ہم سے بچھڑے تھے. اور کیونکہ ہم سب کشمیری ہیں اور ہم سبوں کے درمیان میں ایک یکجہتی ہونا کا بہت ضروری ہے. یہ جو آج ہم نے پلانٹیشن کی ہے یہ ہماری یکجہتی کی نشانی ہے اور ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جن کی یہاں سے باڈیز ریکور نہیں ہو سکی تھیں. ہم لوگ پلانٹیشن کا مقصد ساتھ انوائرمنٹ کو بچانا بھی ہے اور روڈ سیفٹی کا ایک میسج دینا بھی ہے. آج یہاں پہ جو ہمارے ساتھ کوہٹا کی ٹیم سے موجود ہیں جناب عامر صاحب اور جناب دانش سعود صاحب، اور جو ہمارے ساتھ آج کے یہاں پہ مہمان خصوصی ہیں جناب انجینئر نذیر حسین قریشی صاحب جن کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے، اور جناب ڈاکٹر عارف قریشی صاحب، جناب ایڈوکیٹ خاور ریاض قادری صاحب اور پروفیسر آصف کھٹر صاحب. تو ہم لوگوں نے یہ جو ایکٹیویٹی آج یہاں پہ پلان کی ہے اس کا مقصد ایک اویئرنیس دینا تھا کوہٹا کی عوام کو کہ وہ اس پل سے تو گزرتے ہیں لیکن اس پل کی ہسٹری کا ان کو معلوم نہیں تھا. یہ اویئرنیس ایک میسج دینا کہ آپ یہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے جتنے بھی کوہٹا کے مکین ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی یہ جو آپ ڈیمیجز دے سکتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی لاپرواہی بھی تھی اور اوپر سے ہمارے پاس جتنے بھی کشمیری خاص طور پر یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنا کہ جب بھی وہ یہاں سے گزریں تو ان کے لیے وہ اصالِ ثواب کے لیے بھی دعا کریں. بہت شکریہ آپ کا. سیون فروری 2016 اور ابھی ہم کوہٹا کے مقام پر موجود ہیں اور جیسا کہ SSWS کی 2016 کی ایکٹیویٹی جو پلانٹیشن کا اناگوریشن ہوا ہے آج یہاں پہ، تو حمزہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. حمزہ، اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے کیا کہو گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیم سوس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رالا کوٹ ان کی سرزمین سے اٹھ کر فارورڈ کوہٹا میں آج 27 سال بعد یہ ایکٹیویٹی پلان کی ہے. تو اس پر میں تمام ممبران کو اور کوہٹا کی سول کمیونٹی کو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جیسا کہ رضا نے بتایا کہ آج ہم نے یہاں پہ کوہٹا کے مقام پہ 1988 میں ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 70 کے قریب اموات ہوئی تھی. تو وہ حادثہ جو ہوا تھا وہ قدرتی حادثہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں یہاں پہ وہ ڈیم کا پانی بھی سے چھوڑا گیا. یہ جو بھی ہے وٹ ایور، یہ جو نالا ہے یہاں سے آتے ہوئے وہ پانی کی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے شہر میں ہیں تو بہت اچھا فیل ہوا کہ آپ لوگوں کو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ کی پروفائل دیکھی، آپ کی ویڈیوز دیکھی، کافی اچھا لگا. تو ہم بھی ایسی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے آپ کا ساتھ دیا. ہم نے کہا کہ یہاں پہ آپ ضرور آئیں، یہاں پہ پلانٹیشن کریں. ہم معزز مہمانوں کو بھی بلایا اپنے کو، انشاءاللہ آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے یہاں پہ اس ایکٹیویٹی میں. تو اس کیا آپ کو اس بس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے پہلے سے علم تھا؟ نہیں صاحب، میں تو یہ ایس این قریشی صاحب ہیں، تو انہوں نے جب یہ ایونٹ فیس بک پہ پوسٹ کیا مجھے تو تب پتہ چلا. میں نے پھر اس کی ہسٹری ساری چیک کی، اس میں آپ کی ویڈیوز بھی سامنے آئی. کچھ آپ نے بہت کام کیا، یہ لوگوں کو اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں اجاگر کیا آپ نے. تو تب مجھے پتہ چلا یہاں پہ یہ تو بہت بڑا حادثہ تھا. ایک جنگ نیوز کی بریکنگ نیوز عید کے بعد کی بات تھی میرے خیال سے، جب جنگ نیوز پہ یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ خبر شائع ہوئی تھی. اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ جو اب پل جس پہ ہم ڈیلی سفر کرتے ہیں یہ بنا ہے. تو ہمیں ان شہداء کو ضرور یاد رکھنا چاہیے.
कोटा में आए और आपको हम वेलकम कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 1988 में जो शहदा की याद में आप प्लांटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है ना आप लोगों का जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी मदद बंदों को बुलाया हुआ है, कोटा के नामी ग्रामी हस्तियाँ वो भी आ रही हैं। तो कहना मैं ये चाहूँगा कि मैं हुकूमत से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब ऐसा हादसा 70 लोगों की जान लेके चला गया तो उसके बाद ये पुल उन्होंने क्यों बनाया, पहले क्यों नहीं बनाया उन्होंने? तो ये जो है ना एक सवाल निशान है हुकूमत पे कि उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं किया। जब लोगों की जानें ज़ाया जाती हैं तो ये काम उसके बाद ये करते हैं। तो उन शहदा की याद में हम इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे और पिटीशन भी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को सबको मशकूर हूँ कि आप लोग वहाँ से रावलाकोट से बहुत दूर से चल के यहाँ पर आए हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है ना इस मुकाम को और बेहतरी की तरफ लाएंगे और हमसे जो भी हो सकता हम आपके साथ ताउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ पे हमारे होस्ट और एडवोकेट खावर रियाज कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में वो हमारे साथ आए। तो मैं उनको टीम SSWS की तरफ से वेलकम कहता हूँ और इस हादसे के हवाले से वो क्या कहेंगे जो 1988 में और हमारी इस एक्टिविटी जो SSWS की प्लांटेशन एक्टिविटी, इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं SSWS का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस पुराने पुल पर एक बहुत बड़े और यादगार हादसे को जो है दोबारा इन्होंने यहाँ पर उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस इवेंट को सजाने के लिए। और बेशक ये बहुत बड़ा काम है, गए हुओं को कौन याद करता है, लेकिन जाने वालों को याद रखना और ऐसे हादसात को याद रखना जिनसे हमने बहुत बड़े नुकसानात उठाए हों और वो उनको याद रख के अपना मुस्तकबिल बनाना, बहुत अच्छी ये सोच है आपकी। और हादसे तो बेशक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, लेकिन हर हादसा में कोई ना कोई पैगाम दे के जाता है और हमें उन पैगामों से सबक सीखना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये पुल तो यहाँ पर नया तामीर हो चुका है, लेकिन जो पुराना पुल था उसमें एक ये हादसा नहीं, 92 में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसी तरह पूरी एक बस चली गई थी और उसमें से मेरे ख्याल में कोई भी बंदा बचा नहीं था। तो ये इस पुल पे बहुत बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें से ये 88 का बहुत बड़ा हादसा था। इसमें भी ये एक बस पूरी पानी में चली गई थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो मैं दुआगो भी हूँ जितने यहाँ पर हादसे हुए, जितने लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और बिलखुसूस उन माओं को जिन्होंने अपने जवान बेटों को खो दिया, उन औरतों को जो बेवा हो गई और वो बच्चे जो यतीम हो गए, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ। अभी 88 से काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये ऐसे ज़ख्म हैं जो कभी भी भरे नहीं जाते। तो उनके लिए मैं सब्र की भी दुआ करूँगा और उनके जो मरने वाले हैं उनके बच्चों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए भी दुआ गो हूँ। बाकी अगर एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि जब ये हादसा हुआ है तो उसमें जो यहाँ से एक कुछ फासले पे एक डैम है, तो डैम का जो स्पिलवे खोला जो इसका रूट काज बना इस हादसे का, तो क्या उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए था? और अगर उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद नहीं थी तो उसकी फिर बंदा कानूनी तौर पर किसके खिलाफ, मतलब कि किसके लिए कानूनी चाराजोई कर सकते हैं? एक्चुअली ये देखिए, ये बहुत पुराना इंसिडेंट हो चुका है। एक तो ये है कि वो जो डैम की मैनेजमेंट है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो गलती तो उनकी है, लेकिन इंतज़ामिया को एतमाद में लेके उन्हें यहाँ पर उस वक्त 88 में, चूँकि इतने आप देख सकते हैं कि सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। एडवांस ना होने की वजह से अभी तो किसी जगह पे कोई हादसा होता है तो ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, सिक्योरिटीज़ एहलकार मौजूद होते हैं, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा जो है कंसेप्ट नहीं था। सिर्फ एक थाने में पुलिस थी और चंद ट्रैफिक के वार्डन्स थे। तो इसलिए ये इत्तफाकिया हादसा आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई के हवाले से बात है तो ये चूँकि एक हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, तो आई थिंक द लिमिटेशन हैज़ बार्ड। तो अभी
कोई कानूनी इस पे तो कोई चाराजोई किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि हमें आप जैसे नौजवान अगर मिल के अलर्ट रहेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा इस तरह का कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा, इंतज़ामिया की गफलत कम अज़ कम नहीं होगी। बाकी जो नेचुरल हादसात हैं उनमें तो कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो एक मरतबा फिर मैं आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है SSWS और जितने आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, आपकी मैनेजमेंट है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अपने फोरम से अल वकील ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट सेल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोटा में इस्टेब्लिश हो चुका है। हमारे फोरम से आपको कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो, इंशाल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कहूटा की नामी ग्रामी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रैशी साहब, जो कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं प्लांटेशन की एक्टिविटी में। और सर, यहाँ पर जो हादसा 1988 में पेश आया, तो उसके हमारे साथ क्या रिमार्क होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक नोबल काज के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। दरख्त लगाना एक ऐसा ही है जैसे किसी जगह को हमेशा के लिए एक पुरफजा मकाम बनाना, और ख़ास तौर पर दरख्त लगाने से जो सेफ्टी होती है रोड्स की, उस हवाले से बेशुमार हादसा बच जाते हैं। और जब हादसा का नाम आता है तो इसी मुकाम पर जो हादसा 1988 को हुआ, जो अलमनाक हादसा था, इसी पुल से एक बस जो है वो गिरी नीचे और लुढ़कती हुई यहाँ से काफ़ी 1 किलोमीटर तक वो चली गई, और वो ठोले खाती बस, उसके मुसाफिरों की चीखें आज भी इस धरती में सुनाई देती हैं। और उसमें तकरीबन 70 के करीब लोग इस अलमनाक हादसे में जान भाग हुए और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन इस मौके पर यहाँ के मकामी लोगों ने जिस तरह दिन रात एक करके लोगों को बचाने की कोशिश की, जिस तरह अपने खून के एहतियात दिए, और जिस तरह हमारे तमाम मकामी और गिरदनवा के लोगों ने इस हादसे को अपना एक घर का फर्ज समझ के हर फर्द को इस हादसे से बचाने की कोशिश की और निकालने की कोशिश की, वो बजाते खुद अपनी जगह एक नोबल काज है। और आप जैसे नौजवान जब ऐसे काम करते हैं और इन चीज़ों को जब याद करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो लगता है कि आज हमारी कौम जिंदा है। और नौजवान जिस कौम को जब हादसा को, किसी पुरानी दास्तान को, किसी माजी को दोबारा याद करके उसकी याद को ताज़ा करते हैं, तो यही लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल उन अजीम कारनामों को, उन अजीम लोगों को, ऐसे अलमनाक हादसा को हमेशा अपने जहन में रख कर प्लानिंग करती है, और यही प्लानिंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत बनती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल कौसार कश्मीर के जितने भी लोग हैं आप, और जिस नोबल काज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला इसमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और ये जो मिशन लेकर आप निकले हैं, दरख्त लगाने का, रोड को बचाने का, हादसा बचाने का, और ऐसे अलमनाक हादसा को रियलाइज़ करने का, अल्लाह तबारक ताला आपकी इसमें मदद फरमाए। और खुदा करे कि जिस तरह उस वक्त लोगों ने हादसे के वक्त बेशुमार लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इस हादसे को कतलमुमकिन जो जाने बच सकती थी बचाने की कोशिश की, आप लोग भी उसी तरह काम करते रहेंगे और इस मुल्क को कम कीमती सरमाया करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हादसे के वजह से हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं, हमें चाहिए कि वैसे भी मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, जो कि हमारे लिए भी अच्छे हैं और पूरे मुआशरे के लिए अच्छे हैं। और जिस नेक मकसद के लिए आज यहाँ ये 1980 के हादसे की याद ताज़ा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला इन नौजवानों ने एक अपनी उन भाइयों को याद करने की ताज़ा की है जिनकी जानें रुकमांजल बनी यहाँ पर, उस दर्दनाक हादसा को याद करें। अल्लाह तबारक ताला ऐसे नौजवानों को और ज़िंदगी में तरक्की अता फरमाता कि अपनी माजी को इसी तरह याद रखते हुए अपने मुस्तकबिल गुजारते हैं।
यहाँ पर जो प्लांटेशन की है उसमें मैं बहुत मशहूर हूँ हमारे तमाम गेस्ट का, जो आरिफ कुरैशी साहब, खैबर कादरी साहब और नजूर कुरैशी साहब और तमाम SSWS की टीम में बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और यहाँ पर एक यादगार शुहदा को खराज तहसीन पेश किया। और मैं इनसे कहूँगा, गुजारिश है मेरी कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे एक्टिविटीज़ को जारी रखें, हम सब इनके साथ हैं। और अब आप आवाम को भी यही कहूँगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने और अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 फरवरी 2016 और कोहटा के मुकाम पर अभी मौजूद हैं हम, टीम SSWS, और यहाँ पे जो हमारे होस्ट थे SN भाई की टीम, जिसमें आमिर साहब, दानिश रऊफ साहब और जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ आए, यासिर तुफैल आए, राहिल सलीम आए, हमजा नसीर, रऊफ काशिर, सनी यहाँ पे आए, और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे हमारे साथ आए प्लांटेशन में, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम यहाँ पे 7 प्लांट्स उन लोगों की याद में प्लांट कर चुके हैं जो 1988 में एक हादसे का शिकार इसी जगह पे हुए थे, जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे हैं। उस वक़्त अंदोहनाक वाक़या था, हर तरफ पानी और दरमियान में जहाँ पे एक कार और चंद लोग यहाँ पे खड़े, इस जगह पे कहते हैं कि जाकर गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद जो वावेला और जो जिस तरह के मनाजिर थे वो बयान नहीं हो सकते। तो उन लोगों की याद में यहाँ पे हमने प्लांटेशन की। इस प्लांटेशन का मकसद ये है कि रोड सेफ्टी के हवाले से एक अवेयरनेस को आम करें, दूसरा इन्वायरमेंट के हवाले से हम लोगों में एक शऊर पैदा करें कि वो प्लांट्स लगाएं ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। तो इस हवाले से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से या जो इस तरह की जो गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो हज़र्ड्स हैं आप इनको पहले एसेस करें और उसके बाद उसको कैसे कम किया जा सकता है और उसको कंप्लीट उस चीज़ को कवर करें। आखिर क्यों ये पुल यहाँ पे उस टाइम पे ये ब्रिज बना जब 70 लोग यहाँ से अपनी जाने हाथ से धो बैठे, फिर उसके बाद ये ब्रिज क्यों बना? तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी है कि प्लीज़ इस हवाले से ज़रूर कोई ऐसी मेजरमेंट्स होनी चाहिए कि जितने भी ऐसे इस रोड पे इस तरह की जितनी भी रोड्स हैं इस एरिया में उस पर काम होना चाहिए। जहाँ पे जो जगह डेंजरस साबित हो सकती है उस जगह को प्रॉपर उस पर काम होना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। आज से 2 साल पहले टीम SSWS ने एक एप्लीकेशन मूव की थी पंजाड़ से इस्लामाबाद जाते हुए, जो रास्ते में पंजाड़ का जंगल है उसमें 22 ऐसे प्लांट्स हैं जो डेंजरस मार्क किए गए, लेकिन अभी तक वो रिमूव नहीं हुए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उन दरख्त को रिमूव किया जाए और आज़ाद कश्मीर से पुंछ डिवीजन को 1.6 मिलियन पीपल को जो रोड इस्लामाबाद से फेडरल से कनेक्ट करती है, करोड़ डैम बनने के बाद इस रोड का जो सर्वे है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जो भी हो प्लीज़ उस रोड को शार्ट होना चाहिए और उस रोड पे इस तरह के जो डेंजरस स्पॉट्स है उस जगह को प्रॉपर वर्क किया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और मैं अपनी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा यही मैसेज है कि अगर आप इफ़ यू कैन ड्रीम यू कैन डू इट। सिर्फ